হাই বন্ধুরা, কেমন আছো? তো আজকে 3 নম্বর দিন। তো আজকে আমরা লখনৌকে বাই বাই করছি, দিয়ে যাচ্ছি অযোধ্যা ধাম হবু স্থানে। তো সকাল সকাল তো উঠতেই হচ্ছে, সব বেরিয়ে গেছে জিনিসপত্র, আমি একমাত্র রুমে আছি, নিচে যাই সব ডাকছে। তো বেশি কথা আর বলছি না, চলো কি কি হচ্ছে দেখে না। তো গাইস, এখন লাগেজপত্র সব নিয়ে আমরা উঠে পড়েছি। তো এখান থেকে যাচ্ছি বাস স্ট্যান্ড, এখানকার বড় বাস স্ট্যান্ডে। তো চলো দেখতে দেখো। এই আমার পাশে জ্যাঠা বসে আছে, ওই পাশে দিদিরা বসে আছে। তো চলো দেখতে দেখো। বাস স্ট্যান্ডে চলে এসেছে, এই বাস স্ট্যান্ড এর ভেতর। চলো, আর বাসের ওখানে যাবো, চলো দেখতে থাকো। তো গাইস, আমরা বাসে এসে গেছি। তো সরকারি এসি বাস। তো এখান থেকে আগে মানে বার্গার নিয়ে নিচ্ছি। তো চলো খেতে খেতে অযোধ্যা ধাম যাওয়া যাক। গাইস, আমরা অযোধ্যা ধাম বাস স্টপ চলে এসেছি। এখান থেকে টোটে করে আবার যাচ্ছে আবার হোটেলে। চলো দেখতে পাচ্ছি। গাইস, আমি হোটেলে চলে এসেছি। তো এই লাগেজ নিয়ে এখন যাচ্ছি ওপরে সেকেন্ড ফ্লোরে সব লাগেজ রাখতে। আমাকে লাগেজ রাখার দায়িত্ব দিচ্ছি, চলো দেখতে থাকো। তো গাইস, এখন চলে এসেছি আমাদের রুমে। তো চলো দেখতে থাকো। এই পাশে পাশে সব রুম, চলো দেখতে থাকো। তো গাইস, এখন এসেছি হোটেলে খেতে। তো খিদে পেয়ে গেছে অনেক, তো খেয়ে দে চলো তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে। কোথায় কি যাচ্ছি দেখতে থাকো। আমরা কচুরি আর পুরি অর্ডার করেছিলাম। তো জেঠিমাদের এসে গেছে, আমাদের টাও আসছে। চলো খেয়ে দে তোমাদের সাথে কোথায় যাচ্ছি তারপরে বলছি, আগে পেটটা পুজো করে নিই। তো গাইস, এখন আমরা লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো দেখতে বেরিয়েছি, কিন্তু এখানে কি বলে কারেন্ট যাচ্ছে ঘন ঘন, তাই রাস্তার মেন লাইটটা দেখলে উড়ে গেল, মানে অফ হয়ে গেল। হোটেলও তাই। আর কি বলবো, ব্যাগটা না। আর এখানে প্রায় অযোধ্যার থেকেও ঠান্ডাটা বেশি লাগছে মনে হয়, না কমই লাগছে, ঠান্ডা লাগে। প্লাস হচ্ছে না, প্রায় অন্ধকার, ওর জন্য মুখ দেখতে পাচ্ছে না। তো চলো দেখতে থাকো। তো গাইস, এখন আমরা সুরজ কুণ্ডে এসেছে। তো এখানে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো দেখতে। তো চলো ভেতরে ঢোকা যাক। গাইস, এটা সূর্যকুণ্ড, এখানে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো হয়। তো 6:30টা এখানে পূরণ হয়ে গেছে টিকিট। তো 6:30টার মধ্যেই ঢুকলাম, পুরো ডট 6:30 বাজে এখন। তো ওর জন্য ওই টিকিটটা নিয়ে নিই, হাফ চালু হয়ে গেছে বলে। তো এরপরে আমরা নিচ্ছি 7:00টার টিকিট। তো 7:00টা দেখবো। তো তার আগে এখানে একটু ঘুরে নিই। আর এখানে খুব ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। চলো দেখতে থাকো, দেখতে থাকো তোমরা। তো গাইস, এটা ফার্স্ট শোয়ে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোটা শুরু হয়ে গেছে জলের মাঝখানে। তো এটা আমরা যাচ্ছি না, আমরা এর পরের শোটা দেখবো। তো এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু টাইম পাস করছি। তো চলো তোমরা দেখতে থাকো। তো গাইস, আমরা সব বসে নিয়েছি। তো এখানে আরো লোক আসবে, তারপরে শুরু হবে। तो चलो देखते देखो। ये शो न केवल आपका मनोरंजन करेगा तथापि पौराणिक सूर्य कुंड की समृद्ध कथाओं के बारे में भी बताएगा। अयोध्या अपनी आध्यात्मिकता और भक्ति के लिए जाना जाता है। अयोध्या विकास प्राधिकरण इस समृद्ध धरोहर को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने मोबाइल फोन बंद कर दें या उन्हें साइलेंट मोड पर रखें। आशा है कि आप शो का आनंद लेंगे और सूर्य कुंड की पौराणिक कथाओं की समझ और उल्लास लेकर जाएंगे। धन्यवाद।
अयोध्या नगरी सूर्यकुंड प्रांगण में आपका स्वागत करती हूँ। आप सब उपस्थित लोगों को मैं सूर्यकुंड की महिमा सुनाती हूँ। भारत की मिट्टी अनेकों दिव्य आत्माओं की जन्मस्थली है, पर आज मैं आपको कथा सुनाऊंगी भगवान विष्णु के उस अवतार की, जिनके अवतरण से मैं पावन हो गई सदा सदा के लिए। माँ कौशल्या की गोद में जन्म लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अधर्म के नाश के लिए, धर्म की विजय के लिए अयोध्या त्याग 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा। पुनः वो घड़ी आई जब सीता माता के साथ उनका पुनः आगमन अयोध्या में हुआ। हर्ष था चहुओर और उल्लास था हर दिशा में। वो घड़ी बस आने को थी जिसकी प्रतीक्षा में मैं विद्वान थी, जाने कब से। प्रभु राम का राज्याभिषेक बस होने को था, हर कहीं उत्सव था, पर इस उल्लास पर दुविधा की कालिमा छा रही थी। श्री राम प्रसन्न नहीं थे। राज्याभिषेक का कोई उत्साह उनके चेहरे पर नहीं था। उन्हें राज्य का लोभ नहीं था, सिर्फ अपनी प्रजा की चिंता थी। सबके मन में एक ही प्रश्न था, कौन हल कर सकेगा श्री राम की इस दुविधा को, मिटा सकेगा इस अंधकार को, किसके तेज से छट जाएगी ये क्रांति। श्री राम जो स्वयं सशरीर धरती पर पधारेंगे, श्री राम को राम राज्य समझाने। ये गाथा उस शक्ति पुंज की है जो पृथ्वी पर जीवन और सृष्टि का केंद्र था, है वो अखंड शक्ति स्रोत जो दिशा दिखाता है। का दर्द था, उनके लिए मुकुट अथवा राज सिंहासन वैभव का लोभ नहीं। अब कैसे सुखी दिखे जब तक सुखी सारे लोग नहीं। तब दिशा निर्देशन के लिए श्री राम ने स्वयं सूर्य देव का स्मरण किया। श्री राम आज स्वयं श्री राम ध्यान रखें, मर्यादा पुरुषोत्तम आवाहन कर रहे हैं, उन सकारात्मक शक्तियों का संचार कर रहे हैं जो उन्हें, मुझे और मेरे यानी अयोध्या के हर निवासी को अनंत काल तक सही दिशा दिखाएं। उनकी पहली किरण के स्पर्श से कलियां एक एक कर खिलने लगी। जीवन की कांति हर ओर धीरे धीरे फैलने लगी। राम वंशज हैं आपके, क्यों पाप का भागीदारी बनाते हैं पितामह? पितामह पितामह होंगे हम ब्रह्मलोक, अब धरती पर जनलोक में आ गए। चलिए। सूर्य देव के आगमन पर माँ कौशल्या उन्हें मिली और विनती की कि हे देव, मेरे पुत्र की दुविधा दूर करें, उन्हें राह दिखाएं ताकि जन की प्रीति हो, लोक संरक्षण हो, सत का आभास हो, परमानंद प्राप्ति हेतु मंगल उद्भास ना ही हो और ना कोई आतंक हो। कोई नहीं रंग हो, सुख ही सुख निशंक हो, प्रेम योग धर्म मूल्य प्राण, कल्याण। मां कौशल्या, अभी ये मुकुट मात्र सोने का है। मैं इस मुकुट को राम के साथ सदा उपस्थित होने का बना देता हूं।
स्वयं सूर्यदेव ने मेरी यानी अयोध्या की धरती पर श्री राम को राम राज्य का वर्णन सुनाया, उसका आधार रखा और उनके मुकुट को अपनी रश्मियों से आशीर्वाद दिया। श्री राम के नेतृत्व में हर ओर राम राज्य का पथ दर्शाकर चल दिए सूर्यदेव पुनः अपने लोक, ताकि अनंत काल तक अयोध्या ही नहीं पूरा विश्व उस शक्ति का संचार अनुभव कर सके। मेरा और इस कुंड का स्वरूप भी बदलता गया। स्कंद पुराण के अनुसार यह स्थल घोषार्क तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। जब प्रतापी राजा घोष यहाँ आए और उन्होंने ऋषियों को यहाँ स्नान करते देखा तो स्वयं भी किया, जिसके बाद उनका शरीर दिव्य, निरोगी और अलौकिक हो गया। और इसी कुंड के जल से उनकी काया भी कांतिमय हो गई। बीते और फिर अनेकों सदियों के बाद राजा दर्शन से यहाँ आए। यही तपस्या करने के बाद उन्होंने यहाँ सूर्य मंदिर, कुंड और चारों ओर घाट का निर्माण कराया और तेजमय हो गई। और इसका प्रमाण इस सूर्य कुंड और समीप स्थित गरिमा में सूर्य मंदिर से स्थापित हो जाता है। इस हर्ष से भूली नहीं समाती कि मेरी ही धरती पर राम राज्य की आधारशिला रखी गई। आज भी अयोध्या एकता, आस्था और शांति के लिए उदाहरण बनी हुई है। मिलकर सारे झूमो और नाचो गाओ। তো গাইস আমাদের লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো শেষ। তো এবার এখান থেকে যাচ্ছি হচ্ছে কোথায়, হোটেলে যাচ্ছি। তো চলো হোটেলে গিয়ে দেখা হচ্ছে। তো গাইস আজকে এখানেই শেষ করছি ব্লগটা, বেশি বাড়াচ্ছি না, যে অনেক জার্নি হয়ে গেছে। তো চলো বাড়ি হোটেলেও চলে এসেছি। তো বাই বাই, তো দেখা হচ্ছে কালকে।